ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਲਾਈਵ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਤੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰਾਇਆ 2019 ਚ ਵੀ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। We now have a lot of work to do in Madhya Pradesh. Well, hopefully we win Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The youth of the states, the farmers, shopkeepers, small business owners, all of them have supported us and we have a commitment to them and we are going to work towards that commitment. We are going to provide the states with a vision and we are going to provide the states with the government that they can be proud of. ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। It is pretty clear that there is a feeling among people in our country that what was committed by Mr. Modi he has not been able to deliver. I mean that's clear cut. 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ। 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ MNF ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ TRS ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ 'ਚ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ 'ਚ ਵਿਖੇ ਮਤਭੇਦ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ RBI ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਾਗੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ, ਸੁਹਾਗ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਕਪਿਲ ਦੀ ਜਾਗੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਉਣਗੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਢੋਲ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ TRS ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ MNF ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਇਹ BJP ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੇ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸੀਮ ਬਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ BJP ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬੁਕੇਸ ਐਂਡ ਦ ਬ੍ਰਿਕ ਬੈਟਸ ਗੁੱਡ ਦ ਕੈਪਟਨ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਖੇਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ। ਔਰ 3 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP ਔਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, BJP ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫॉर BJP। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਈਅਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਅੱਜ 11 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਡਿਫੀਟਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਗ ਡੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਲਦੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹਾਰੇ, 2 ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਰੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ, ਲੇਕਿਨ TRS ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 3 ਆਊਟ ਆਫ 5 ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ। ਕਿ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2019 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ 2019 ਦੇ ਲਈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ 2019 ਦਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 8-9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ 2019 ਦੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ। ਆਲਦੋ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ अगले 5 महीने चुनाव ने, इसलिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो ये सेमीफाइनल है, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एज ए लीडर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की जी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो वधेगी। कांग्रेस का वर्कर च जान पै जाएगी। बैक टू बैक डिफीट्स देख के जो डिमोरलाइज हो गए सी वर्कर काडर मूव कर जाएगा। सो एक कहते ना भी जो शुरू हो जाओ तो पंजाब है, नेबरिंग स्टेट राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। सो एक पूरा नॉर्थ तो शुरू होकर सेंट्रल इंडिया के कट करके कांग्रेस का कब्जा होया नज़र आ रहा है। बिल्कुल राहुल गांधी का आत्मविश्वास वध चुका, कह रहे हैं कि 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्सा आई, जो नतीजे आए ने। देखो हमेशा इन्हों मोदी गवर्नमेंट किया गया, कभी भी बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट नहीं किया गया, हमेशा ही मोदी सरकार कहते हैं, चाहे बीजेपी के लोग भी होन विरोधी भी होन। सो क्रेडिट उन्होंने सी, डिसक्रेडिट भी उन्होंने है। जो वड्डे इशूज़ की आप गल करिए, कोर इशूज़ से फेल होया, चाहे फाइनैशियल इशू होए, कल ही RBI के गवर्नर ने रिजाइन किया, CBI के इन्नियां प्रॉब्लम्स ने, वड्डे वड्डे लोग जोड़े है देश के विचों गवर्न करके भज गए। सो वो सारिया चीज़ों का कोई भी मिस गवर्नेंस, चाहे कांग्रेस सरकार होए चाहे बीजेपी होए, जिदे रूल के दौरान होगी उन्होंने जवाब देने पैणगे, उन्होंने वो चीज़ां फेस करनियां पैणगियां। और पूरे इलैक्शन के डायरैक्ट अटैक जिहड़ा सी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के उत्ते रखा सी। और अज प्रैस कॉन्फ्रेंस के भी उन्होंने कहा भी प्राइम मिनिस्टर फेल टू रीड द हार्ट बीट ऑफ द नेशन। और जिन्होंने कहते हैं भी मिस कीतियां सिचुएशनस अपॉर्चुनिटी सी, लेकिन देखो हारदा जो बंदा उदों हंबल रहना चाहिए, पर अज जित रहे हैं तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी का दिन है अज। बीजेपी की लगता है जो हार हुई है इस तो उभर पावे, क्योंकि वड्डी हार जिवें से कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई कितना स्कोप है 2019 नूं बस कुछ ही महीने बाकी ने। नहीं देखो हमेशा वेकअप कॉल तो है, बड़ी तगड़ी एक वेकअप कॉल है बीजेपी वास्ते। बिल्कुल सैफरनाइज्ड हो गया सी, जे आप पार्टी के कलर की गल करिए तो सैफरनाइज्ड एक इमेज आता सी, हर जगह बीजेपी का कब्जा सीगा। लेकिन हुण कांग्रेस ने एक ब्लू एंटर किया है मैप के विच भी हाँ कांग्रेस पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, पंजाब के विच सीगी, 3 होर सूबे के विच हुण आ गई है। सो वेकअप कॉल है। जे आप गल करिए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये वड्डियां स्टेट्स ने, बहुत ज़्यादा लोक सभा सीट्स ने उत्थे, तो 2019 भी इन्होंने देखना पड़ेगा, फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि कित्थे की होया कित्थे की। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बैठेगी, अमित शाह लीड कर रहे हैं, काफ़ी स्टेट्स जिताइयां भी ने। सो वही मैं गल कही भी इन्होंने वास्ते पार्टी टाइम तो कांग्रेस वास्ते मीटिंग टाइम होने वास्ते। किवें देखा जाए कि कांग्रेस का केड़ा पैंतड़ा, राहुल गांधी का केड़ा पैंतड़ा जो है वो बीजेपी ते भारी पै गया। देखो न्यूनैस भी एक चीज़ है, एंटी इंकमेंसी होंगी है। 15-15 साल हो गए सी बीजेपी नूं अपना छत्तीसगढ़ के विच और मध्य प्रदेश के विच एंटी इंकमेंसी भी प्ले की होगी। प्लस अज तुसीं देखा होगा पंजाब दे विच फार्म लोन वेवर प्रॉमिस जिहड़ा सी बिग टिकट साबित होया। राहुल गांधी कहंदे हुए दिखा दे कर्ज माफी लई असीं प्रोसीजर पंजाब दे विच एक बिग टिकट साबित होया सी। कैप्टन सरकार आई, फार्म लोन वेवर चाहे मुश्किलां बाद बहुत वधिया पैसे देण नूं नहीं हैगे सी। छत्तीसगढ़ दे विच होली वाओ लई गंगा जल हथ लाई क्या 10 दिन के छत्तीसगढ़ का फार्म लोन वेवर करांगे। अज क्या भी होना भी इमीजिएटली प्रोसैस शुरू होगा। मध्य प्रदेश के गए उत्थे फार्म लोन वेवर प्रॉमिस किया, राजस्थान फार्म लोन वेवर प्रॉमिस किया। ये क्या विमेन नू फ्री एजुकेशन, इत्थे तक कहता भी स्वामीनाथन कमीशन नू इंप्लीमेंट करांगे। ठीक है, MSP का रेट फिक्स करांगे, चाहे पैडी हो चाहे मेज़ हो। सो फार्म लोन वेवर, MSP, फ्री एजुकेशन फॉर वुमेन, ये चीज़ां तो उन्होंने प्रॉमिस किए ने। लेकिन मुश्किल ये होंदा प्रॉमिस निभाने वाली गल, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी फेस कर रहा फार्म लोन वेवर। तो मैंने लगता उस चीज़ को रिपोज किया फेथ राहुल गांधी के विच, और वोटां मिल गई ने। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा भी डिलीवर किद्दां करते हैं। तो बिल्कुल 5 सूबे तो विधानसभा चोणां ते बीजेपी नूं वड्डी हार नसीब हुई है, तो कांग्रेस इस जित नाल काफ़ी उत्साहित ने। जित तो बाद राहुल गांधी ने की कुछ किया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रेक तो बाद। राहुल गांधी का 14 साल का सियासी करियर है, तो अज की जित ने राहुल की प्रधानगी नूं भी हिट कर दिता। राहुल गांधी काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो इस जित तो बाद उन्होंने की कुछ किया सुनते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए,
जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिज़ोरम में हमारी हार हुई, वहाँ जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज़ उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएँ। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। देखिए, हमारी अप्रोच अलग है। हम बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे, मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे, बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते हैं। एक जो जनता में फीलिंग थी, जो जनता विजन देखना चाह रही थी, जो उनको बीजेपी नहीं दिखा पाई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं, जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि वो है क्या। और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने, मैं बंद कमरों में आपसे कहता हूं, बट मैं खुले कमरे में कह देता हूं, आप बब्बर शेर हो। तो ये फीलिंग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में थी वो काफ़ी इफेक्टिव रही। और फ्रैंकली जो नॉर्मली हमारी टेंशन्स होती हैं लीडर्स के बीच में, उनको भी हमने काफ़ी इफेक्टिवली आयरन आउट कर दिया। एक साथ हम चले, एक साथ मिलकर हम चले, तो उसका फायदा हुआ। प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने काम करने के लिए चुना है, और क्लियरली प्रधानमंत्री को मैसेज गया है कि आप रोजगार की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, भ्रष्टाचार का जो इशू है, और अब जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मतलब आरबीआई, जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो डैमेज हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ कीजिए। और फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर पैरालाइज्ड हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एंड ही इज अनेबल टू टेक द प्रेशर दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन। दैट इज प्रीटी क्लियर। उनके भाषणों में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये जो मेन 3-4 सवाल हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। एक ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ मोदी सरकार तो जनता का विश्वास डगमगाउंदा विखाई दे रहा है तो राहुल गांधी की प्रधानगी च कांग्रेस दिल जितण च कामयाब हुई है। वैसे चोण रणनीति की गल करें तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घट रैलियां कीतियां राहुल गांधी के मुकाबले, तो लगता राहुल गांधी का यही प्लान हिट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिथे सब तो ज्यादा रैलियां कीतियां उसी राजस्थान, इत्थे उन्होंने 13 रैलियां कीतियां, जबकि राहुल गांधी के मुकाबले ये रैलियां काफ़ी घट सी, या इंच कहिए अद्धियां सन। राजस्थान च पहला तो ही बीजेपी सत्ता च सी, तां की मान लिया जाए कि बीजेपी पहला तो ही भरोसेमंद सी कि उन्होंने सरकार ने चंगा काम किया तो जनता एक बार फिर वसुंधरा सरकार को मौका देगी, पर चोणों का नतीजे इससे उल्टा है।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। मध्य प्रदेश में मोदी ने कुल 10 रैलियां कीतियां, इससे उल्ट राहुल गांधी ने उस तो दुगनियां रैलियां कीतियां। राहुल ने मध्य प्रदेश 27 रैलियां कीतियां ते जनता दे नमस नूं फड़न च कामयाब रहे। अजिहा कुछ छत्तीसगढ़ च वेखण नूं मिलिया। मोदी ने इत्थे सिर्फ 5 रैलियां कीतियां ते राहुल गांधी ने सूबे दे विच 19 रैलियां कीतियां। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दुनिया भर दी शहादतां तो विलक्षण है। धर्म निरपक्ता की वड्डी मिसाल। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस मौके अमृतसर च नगर कीर्तन सजाया गया। मैनूं दो इजाजत जांदे जांदे खास तस्वीरां।